کے بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں شہر میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر کا مطلع کل تک ابر آلود رہے گا۔ موسم کے حوالے سے احوال جانیں گے شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب، موسم کا حوال بتائیے۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 80% کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں ابھی بھی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج جہاں پہ سورج اپنی تاپ دکھانے کی کوشش کرے گا، وہیں پہ کل سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ اگلے ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔ موسم ابر آلود بھی ہوگا۔ آہستہ آہستہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو پہلے سردی کا زور نظر آ رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا، وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتے دنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دن موسم گرما کی طرف تو جا رہے ہیں، اور درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ 80% کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی شاہزیب شہزاد، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ سستی پروٹین بھی عوام کی قوت خرید سے دور ہو گئی۔ برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 556 روپے ہو گئی ہے، جبکہ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کمی دیکھی گئی ہے۔ زندہ برائلر ہول سیل 376 پرچون ریٹ 390 روپے کلو، مقرر فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 269 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7950 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سستی پروٹین بھی عوام کی قوت خرید سے دور ہو گئی ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 566 روپے ہو گئی ہے۔ احوال جانیں گے، عبد القادر ہمارے ساتھ ہیں۔ عبد القادر، بتائے گا نئی قیمتوں کا اعلان ہو گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نظرنامے جاری کیے گئے پولٹری مصنوعات کے، اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی، تاہم انڈوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے تک کمی کی گئی اور مرغی کا گوشت 566 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 376 اور پرچون زندہ برائلر کی قیمت 390 روپے مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے، کیونکہ برائلر گوشت جو ہے 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جاتا تھا، تاہم رمضان المبارک سے قبل ہی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ کیا گیا اور 550 روپے فی کلو تک پہنچا دی گئی ہیں۔ قیمتیں 7 روپے فی کلو تک کم کی گئی ہیں۔ 566 روپے فی کلو آج قیمت سرکاری ریٹ اس میں مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں آج بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ انڈوں کی قیمتیں جو ہیں گزشتہ روز اس میں جو ہے اضافہ نہیں کیا گیا تھا، تاہم آج مزید 2 روپے بڑھا دیے گئے، کیونکہ پہلے بھی انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر 2 روپے کا اضافہ یہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ آج سرکاری ریٹ میں 2 روپے اضافے کے بعد 269 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7950 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ عبد القادر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ایل پی جی کی قیمت کو آگ لگ گئی، فی کلو قیمت میں 30 روپے کا اضافہ۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں ایل پی جی 300 سے 350 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ۔ ایل پی جی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول، ایل پی جی کوٹا ہولڈرز اور امپورٹرز کا گٹھ جوڑ۔ ایل پی جی کی قیمت میں 30 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ سرکاری قیمت 257 روپے فی کلو مقرر، تاہم لاہور سمیت دیگر شہروں میں ایل پی جی 300 سے 350 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی۔ گھریلو سلنڈر 3030 روپے کے بجائے 4200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایل پی جی کی قیمتوں سے پریشان شہری کہتے ہیں گیس اتنی مہنگی ہے کہ کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے۔ رکشہ ڈرائیورز بھی ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف پھٹ پڑے۔ پورے لاہور میں مختلف ریٹ ہیں، کہیں پہ 300 ہے، کہیں پہ 320 ریٹ چل رہا ہے، کہیں پہ 310 پہ ریٹ چل رہا ہے۔ یعنی کہ پہلے کم تھا ریٹ، 257 ریٹ تھا، اس وقت سواری بھی بیٹھتی تھی اور کام بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اب گیس بھی مہنگی ہے اور سواری بھی کم بیٹھتی ہے۔ گیس ہوتی ہے کہیں 210 ہے، کہیں 300 ہے، کہیں 290 روپے دے رہے ہیں۔ اس طرح کے حساب سے تو مہنگائی پہ اوپر چلا جاتا ہے، کھانا پینے پہ بہت مسئلہ بن جاتا ہے، گھریلو حساب سے بہت تنگ ہیں۔ کسی بھی جگہ دے اتنے ہوگی ہے 320 روپے، کدے 300 روپے ہے، وہی وجہ نال سواری تو بالکل ہی نہیں ہے، ریٹ ہی ایڈا تیز ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی کوئی گل بات ہی۔
रमज़ानुल मुबारक में मुतल्लिका इदारे LPG की सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला मुमकिना महंगाई का बम डिफ्यूज़। हुकूमत का 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल ₹1.77 फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹285.56 फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी ₹1.35 फ़ी लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का इतलाक आज से होगा। खबर है कि पाकिस्तान वनास्पति एसोसिएशन के दावों और वादों के बरक्स घी के दाम बढ़ा दिए गए। एक रोज़ कबल ही सूबाई वज़रा के साथ मुलाकात में घी 15 रुपये कम करने का ऐलान किया गया, लेकिन अगले ही रोज़ मार्केट में घी के दाम 15 रुपये तक बढ़ा दिए गए। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। घी के दाम कम करने की बजाय बढ़ा दिए गए। दर्जा दोम का घी 10 से 15 रुपए फी किलो तक महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत 440 रुपए से बढ़ाकर 455 रुपए फी किलो। वाज़ेह रहे कि एक रोज कबल ही सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफे हुसैन के साथ मुलाकात में वनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द ने घी 15 रुपए फी किलो सस्ता करने का ऐलान किया था। मरकजी किराना एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ताहिर सकलैन बट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट किराना दुकानदारों के खिलाफ तो कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन घी तैयार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये मैन्युफैक्चरर जितने भी थे इंडस्ट्री के वजीर को मिले हैं, उन्होंने यकीन दहानी करी हम घी का रेट कम करेंगे। हमारा जो किराना एसोसिएशन के जो रेट थे दालों के हमने वो कम किए हैं, इसलिए कि चले लोगों को रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत दे सकें। मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब की वज़ीर आला जनाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा से, इसका सख्ती से नोटिस दें। एक रोज कबल वनास्पति मैन्युफैक्चरर्स की मुलाकात में सूबाई वज़रा बिलाल यास्तीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, आशिक हुसैन करमानी, सेक्रेटरी सनत और तजारत एहसान भुट्टा, डीजी इंडस्ट्रीज और मुतल्लिका ऑफिसर्स भी शामिल थे। जबकि वनास्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मुनीब मुन्नू की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ्द ने तारुकुल्ला सूफी, आबिद मलिक, मोहम्मद वहीद चौधरी और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। होशरुबा महंगाई ने पकवानों का मज़ा भी ख़राब कर दिया। गर्म मसालों की कीमतें भी बेकाबू हो चुकी हैं। लोगों के लिए इफ्तार और सहर के लिए दाल सब्ज़ी बनाना भी मुश्किल हो गया। बमुश्किल चंद मसाले ख़रीदने के लिए शहरी जेबें ही टटोलते रह जाते हैं। मसालों का तड़का महंगा पड़ने लगा। सब्जियां दालें पकाना भी आजमाइश। महंगाई ने खानों के लाजमी जुज़ गर्म मसालों की खरीदारी मुश्किल कर दी। शहर की मरकजी गला मंडी अकबरी में भी महंगाई का राज, खरीदार परेशान। अकबरी मंडी में मिक्स गर्म मसाले का रेट 2000 रुपए किलो हो गया। सुर्ख मिर्च 540 रुपए, जबकि धनिया पाउडर 570 रुपए किलो बिक रहा है। सब्ज इलायची 6000, जीरा 1800, जबकि काली मिर्च 1650 रुपए किलो फरोख्त। दारचीनी 900 रुपए और बड़ी इलायची 6500 रुपए किलो बेची जा रही है। मंडी में आए खरीदारों का कहना है कि होलसेल मंडी में अशिया की कीमतें आसमान पर हैं। घर के लिए चंद मसाले खरीदे हैं और 10,000 रुपए बिल बन गया। यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जो वक्त चल रहा है इस वक्त, जो महंगाई 100 से 200 300% हो चुकी है। जो जीरा हमें पिछले साल 1100 रुपये मिलता था, वह 2200 रुपये हो गया है। इसमें कुछ चाहिए हुकूमत को, रिलीफ दे आवाम के लिए और कुछ सोचें। आवाम की तवक्को है इनसे, अब देखें क्या करते आगे। ऐसे ही आप होलसेल के मार्केट में आ जाए तो थोड़ा वो फ़र्क पड़ जाता है, और परचून पे जगह तो 3 गुना ज़्यादा कीमत वो चार्ज कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की आप पता कर लें वहाँ से, वो तकरीबन दुगने से ज़्यादा वहाँ पे चार्ज कर। दूसरी तरफ अकबरी मंडी के ताजरों का कहना है कि दरामदी अशिया का दारोमदार डॉलर की कदर और इम्पोर्ट पॉलिसियों पर होता है। दोनों साजगार हों तो कीमतें कम होती हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सब्जियों और फलों की कीमतें बेकाबू। लहसुन 780, अदरक 750, प्याज 200, टमाटर 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। फूल गोभी 220, बैंगन 170, मटर 100, आलू 90, मेथी 80 रुपए किलो बिकने लगी। अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620, सेब 400, अमरूद 300 रुपए फ़ी किलो फरोख्त होने लगे हैं। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, बताएगा किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं, सब्जियों की लिस्ट में 5 सब्जियां आज महंगी की गई है। आज अदरक चाइना की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया गया, और ये अदरक जो है रमजान मुबारक की आमद के साथ ही रोजाना की बुनियाद पर महंगा हो रहा है। आज मजीद 30 रुपए महंगा करके 560 रुपए किलो सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया था। मार्केट में 750 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का अदरक जो है वो पहुंच चुका हुआ है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें बैगन 10 रुपए महंगे करके 130 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी
5 रुपये महंगी करके 150 रुपये में क्रय की गई है, लेकिन मार्केट में 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 170 रुपये क्रय की गई, मार्केट में 220 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी 5 रुपये महंगी करके 185 रुपये में क्रय की गई, लेकिन मार्केट में 220 रुपये फी किलो तक जो है अरवी की फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। रमजान मुबारक में फलों की कीमतें भी सरकारी रजिस्ट्रों के बरक्स जायद जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। सेब काला कुल्लू 330 रुपये में क्रय किया गया, लेकिन मार्केट में 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल जो है 190 के बरक्स 250, दर्जा दोम का केला 130 के बरक्स 180, अनार बेदाना 700 के बरक्स 1000 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि किन्नू जो है 300 रुपये में क्रय किया गया, लेकिन मार्केट में 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि तमाम सब्जियाँ और फल जो है वो सरकारी नजनामों के बरक्स महंगे दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं और इंतजामिया सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। ठीक है, अब्दुल कादिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म की जानिब से प्याज एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबाई दारुल हुकूमत की मरकज़ी सब्ज़ी मंडी में प्याज की सप्लाई बेहतर होने लगी है। कीमतें अब भी असल निर्खों से ज़ायद हैं। इंतज़ामिया सप्लाई बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। रिपोर्ट देखिए। सब्जी मंडियों में प्याज की किल्लत और प्याज की बुलंद तरीन कीमतों के बाद एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई। हुकूमती इकदाम के सबब सप्लाई बेहतर होने से प्याज के दाम गिरने लगे। लाहौर, शेखपुरा और कसूर समेत दीगर इलाकों में प्याज की शॉर्टेज और कीमतें कदरे कम हुई। तहम दर्जा दोम प्याज अब भी 260 रुपए किलो तक परचून मार्केटों में फरोख्त किया जा रहा है। जिला लाहौर, कसूर और शेखपुरा के इलाकों को सब्जी सप्लाई करने वाली मरकजी सब्जी मंडी बादामी बाग में प्याज की सप्लाई तेज होने लगी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा का कहना है कि लाहौर की मरकजी सब्जी मंडी को रोजाना 60 ट्रक प्याज की जरूरत होती है। पहले ये सप्लाई 25 ट्रक थी, जो डिमांड से इंतहाई कम थी। एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद होने के बाद योमिया सप्लाई 50 ट्रक तक पहुंच गई है। ताजिकिस्तान से भी प्याज इंपोर्ट किया जा रहा है। आइंदा चंद रोज में कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। अभी हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, जिससे कुछ अराइवल बेहतर हुई। जो हमारे 26-27 ट्रक आ रहे थे, अब वो तकरीबन 50 ट्रक पे चले गए हैं और प्राइसेस अब स्टेबल हैं और डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्राइस और कम होगी। प्याज रमजानुल मुबारक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी है, लेकिन 100 से 125 रुपए फी किलो तक बिकने वाला प्याज शहरी 250 रुपए किलो से ज्यादा निर्ख पर खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक में बढ़ती महंगाई से आवाम तो शदीद परेशान नज़र आते हैं। क्या ख़वातीन अरकान असम्बली भी महंगाई से मुतासिर हो रही हैं? ये जानते हैं सामिया सईद की रिपोर्ट में। महंगाई के बायस सहरी और अफ्तारी शानदार करना अब ख्वाब बनकर रह गया है। जानते हैं अरकान असम्बली से कि इनके लिए रमज़ान में दस्तरखान मेंटेन करना कितना मुश्किल हो गया है। हमारे लीडर हुक्मरान है वो सस्ताई करते हैं, लेकिन जो लोग हैं ना वो ऊंचे से ऊंचे बताते रहते हैं, ऊंचे से ऊंचे महंगाई करते रहते हैं। ये इन लोगों का, मुझे खुद भी इस चीज का वो है कि ये लोग सही नहीं करते। सफेद पोश लोग हैं, उनकी ये जिद्दोजहद नहीं है। आई थिंक कि आजकल हर घर की जिद्दोजहद है और बंदा दुआ करता है कि ये ईद का और रमजान का जो टाइम है इसमें सबको थोड़ा रिलीफ मिले। मगर देखें मुल्क के जो हालात है, दुआ करते हैं। यहाँ पे चाहिए कि मुस्लिम ममालिक अगर बाहर की साइड्स पे जाएं तो अब देखें कि मुस्लिम ममालिक में जो रमज़ानुल मुबारक में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाम को ना रिलीफ मिलता है बल्कि आवाम को तकलीफ दी जाती है। कुछ लोग फ्रूट चाट खाते हैं, कुछ चना चाट खाते हैं। ये दिगर अपनी हर बंदे की अपनी चॉइस पे था, लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो शिकायत है हम लोग उनको दूर करेंगे और हमारी भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी ये कोशिश है कि तमाम लोगों को ये सहूलियात मिले और तमाम लोगों को रिलीफ मिले जो कि मिलना चाहिए। ख़वातीन अरकान असम्बली का कहना है महंगाई तमाम लोगों को मुतासिर कर रही है। महंगाई के बायस पहले वाली सहरी और अफ्तारी नहीं रही, मगर नई हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि महंगाई को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन जिशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है पंजाब हुकूमत काश्तकार भाइयों के साथ है, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मंशूर काश्तकारों की फलाह बेहबूद है, आम आदमी के मसाइल का भी एहसास है, सस्ता आटा देना चाहते हैं। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। गंदम से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़ भी दी गई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम पर सब्सिडी से माजी में हुकूमत को 630 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज का बोझ उठाना पड़ा। गर्दिशी कर्जे पर सालाना 80 अरब रुपए मार्कअप अदा करना पड़ा। पंजाब हुकूमत ने 8 माह में 669 अरब रुपए कर्ज अदा किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत काश्तकार भाइयों के साथ है, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गंदम के काश्तकारों की मुआवनत के लिए तमाम तर इक़दामात उठाए जाएंगे। आम आदमी के मसाइल का भी एहसास है, सस्ता आटा देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पंजाब की बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 811 रोड्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली की जाएगी। पंजाब में पहली बार बैक वक्त 16,558 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। पंजाब में इंतहाई खतरनाक और बोसीदा 10 पुलों की तामीर भी शुरू कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने 5 एक्सप्रेस वेज की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने की भी हिदायत की।